चलें जी शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं। अच्छा आप लोग मेरे पास क्योंकि एक दो पेजेस नहीं हैं तो मुझे जरा बताइएगा हमने कहाँ से पढ़ना था। किसी को याद होगा? मैंने कहाँ छोड़ा था ये पढ़ने? मैम पेज नंबर 16 से देयर सिस्टर ऑन द स्टेयर्स। मेरे पास ना पेज का नंबर नहीं है, मुझे पैराग्राफ बताएं। मैम देयर सिस्टर ऑन द स्टेयर्स वेल द 40 ऑफ जुलाई इज ओवर, यहाँ से। Well, the 4th of July is over. The people are all gone and I'm tired out. John thought it might do me good to see a little company, so we just had Mother and Nellie and the children down for a week. What happened on 4th of July? Anybody knows? क्या हुआ था 4th of July को? 4th of July was the Independence Day for America. On 4th July 1775, America got independence from the British colonies, and its 13 colonies were under British yoke. So America got freedom. और ये 4 जुलाई को अपना फ्रीडम और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। और वो कहती है कि जो लोग हैं वो सब अब जा चुके हैं क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के बाद अब जो है मैंने जो कंपनी है मेरे पास थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मुझे मजीद कंपनी की ज़रूरत है अभी कुछ लोगों की, तो मदर और नैली जो है वो एक हफ्ते के लिए आएंगे। Of course, I didn't do a thing. Jenny sees to everything now, but it tired me all the same. John says if I don't pick up faster, he shall send me to where Mitchell in the fall. But I don't want to go there at all. I had a friend who was in his hands once, and she says he's just like John and my brother, only more so. कहती है कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी दोस्त थी जो पहले भी वहाँ एक दफा गई थी। ये वो फॉल इसको कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं ना, उनको कुछ अरसे के लिए काउंसलिंग की जाती है उनकी, ताकि वो रिलैक्स फील करने लगे। तो वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी एक दोस्त थी जो वहां गई थी, और वो कहती है कि वो जो काउंसलर है वो बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह जॉन और उसका अपना भाई है। तो वहां जाकर बजाय कि वो रिलीफ फील करने के या बेहतर होने के, वो पहले से ज्यादा बीमार हो जाएगी। Besides, it is such an undertaking to go so far. दूसरी बात, इतनी दूर तक जाना वैसे ही खतरे से खाली नहीं है। मतलब ये है कि उसकी तबीयत या हालत पहले ही स्टेबल नहीं है। I don't feel as if it was worthwhile to turn my head over for anything, and I'm getting dreadfully fretful and careless. क्योंकि आजकल वैसे भी वो उससे कोई काम नहीं होता, वो फ्रेटफुल हो जाती है, पैनिक अटैक हो जाता है उसे, परेशान हो जाती है और झगड़ा करने लगती है, चिड़चिड़ी हो गई है। I cry at nothing and cry most of the time. Of course I don't when John is here or anybody else, but when I'm alone. उस वक्त नहीं जब कोई यहाँ हो, जब मैं अकेली हूँ। And I am alone a good deal just now. John is kept in town very often by serious cases, and Jenny is good and lets me alone when I want her to. So I walk a little in the garden or down that lovely lane, sit on the porch under the roses,
and lie down up here a good deal. I'm getting really fond of the room in spite of the wallpaper, perhaps because of the wallpaper. It dwells in my mind so. I lie here on this great immovable bed. It is nailed down. Nailed down का क्या मतलब है? नेल डाउन होता है वो बेड जो फ्लोर के साथ फिक्स किया हुआ होता है, कील उसको फिक्स लगाए गए होते हैं, वो मूवेबल बेड नहीं होता. I believe and follow that pattern about by the hour. It is as good as gymnastics, I assure you. I start, we will say, as the bottom down in the corner over there, where it has not been touched, and I determine for the 1,000th time that I will not follow that pointless pattern to some sort of a conclusion. क्योंकि उसे मुसलसल देखना पड़ता है उस पैटर्न को, तो कहती है कि पैटर्न इस तरह का है, एक तरफ से सारा ही फाड़ा हुआ है, एक कॉर्नर की तरफ से, और कहीं इसको टच भी नहीं किया हुआ. लेकिन कहती है कि मैं इस पैटर्न को देखकर फजूल के कंक्लूजन नहीं लगाऊंगी. I know a little of the principles of design, and I know this thing was not arranged on any laws of radiation or alternation or repetition or symmetry or anything else that I ever heard of. जो भी उसने वॉलपेपर के बारे में सुना हुआ है, या उसकी सिमेट्री का मतलब होता है तनासुब, तरतीब, रेपिटिशन, तो वो चीजों के बारे में वो कहती है कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इन चीजों को ज़हन से झटक कर अपने जो अपना काम है उसके ऊपर फोकस करूं, एज कंपेयर टू लुकिंग और स्टेयरिंग एट दैट यूजलेस वॉलपेपर. It is repeated, of course, by the breaths, but not otherwise. Looked at in one way, each breath stands alone. The blotted curves and flourishes, a kind of debased Romanes with delirium tremens, go waddling up and down in isolated columns of fatuity. अब उसको जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो है उसका वहां पे मुसलसल रहना, उस चीज को देखना और एक डिलीरियम की सिचुएशन में चले जाना. डिलीरियम कहते हैं एक मामूली जहन की मामूली ऐसी हालत जो आपको मामूली से गैर मामूली बना देती है. और ये डिलीरियम जो वर्ड है ना, डिलीरियम ट्रेमनिस, ये फ्रेंच वर्ड है जो कि हिस्टेरिया से निकला हुआ है. इसका मतलब है कि ऐसा दिमागी हिस्टेरिया हो जाना जिसमें आप या तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या आप मेंटल कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, आपको हेलुसिनेशंस आने लगती हैं. But on the other hand, they connect diagonally and the sprawling outlines run off in great slanting waves of optic horror like a lot of wallowing seaweeds in full chase. कहीं कहीं से वो स्लैंटिंग बनाया, थोड़ी सी तिरछी लाइंस भी लगाई हुई है, जहां से कोई लाइन डायगोनली लगी हुई है, कोई स्लैंटिंग लगी हुई है. वो कहाँ लगी हुई है? वो वॉलपेपर को इस तरह से खींचा हुआ है, लोगों ने इस तरह से स्ट्रिप किया हुआ है. देखने में वो उसे हॉरिफाइड लगता है, जिस तरह एक बहुत बड़ी बेल ने किसी मकान को लपेटा हुआ हो. जैसे आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा, जो हॉन्टेड हाउस होगा ना, वो उसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई बेल चढ़ी हुई होगी. दिखाई इस तरीके से जाता है वो हाउस कि वो अंधेरा अंधेरा होता है. जितनी चीज या जितना घर अंधेरे में होता है वो उतना ही ज्यादा आपको हॉरर फील कराता है. जिस तरह हमने सिग्नल मैन की स्टोरी में पढ़ा था, सिग्नल मैन जिस जगह पर उसका वो था, हट था जहाँ पे वो रहता था, वो सारे का सारा वैली में था और बहुत अंधेरा और बहुत क्वाइटनेस थी वहां पे, जिसकी वजह से हमें उसको पढ़ते हुए भी सिनिस्टर और मिस्टीरियस सी फीलिंग आती है. The whole thing goes horizontally too. Horizontal line भी लगी हुई है, diagonal भी लगी हुई है उसके ऊपर. At least I exhaust myself in trying to distinguish the order of its going in that direction. और कभी कभी तो वो lines को देखते ही कि diagonal है, horizontal है, उनको देखते ही थक जाती है, क्योंकि उसको खुद अपने जहन में उनको तरतीब देती रहती है. They have used a horizontal breadth for a phrase, and that adds wonderfully to the confusion. अब वो हर चीज की जो कंक्लूजन है वो खुद निकालती है और एक ऐसी सिचुएशन में जाती है जहाँ पे
जैसे किसी ने उसकी सांस के ऊपर कोई फ्रेज रखता है, फ्रेज कहते हैं ऊनी कपड़े को, मोटा कपड़ा होता है जो अगर आप उसको फेस पे रखें खुरदरा कपड़ा तो आपका सांस बंद हो जाता है। तो कभी कभी वो लाइंस उसे इस किस्म का इम्पैक्ट भी देने लगती हैं। देयर इज वन एंड ऑफ द रूम वेयर इट इज ऑलमोस्ट इंटैक्ट, and there when the cross lights fade and the low sun shines directly upon it. Did somebody ask anything? किसी ने कुछ पूछा या वैसी आवाज आई है मुझे? ओके। और जब उस रूम के वो वॉलपेपर क्योंकि हर रूम में लगा हुआ है तो कहती है कि वो वैसे तो हर जगह से इंटैक्ट है, जुड़ा हुआ है, लेकिन जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है बाहर से डायरेक्टली, I can almost fancy radiation. After all, the interminable grotesque seem to form around a common center and rush off in headlong plunges of equal distraction. और जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो उसके ऊपर जिस किस्म के इमेजेस बनते हैं उसे ग्रोटेस्क लगने लगते हैं। ग्रोटेस्क होते हैं मजाक का खेज, रिडिकुलस। और वो हेडलॉन्ग ऐसे लगता है जैसे वॉलपेपर कहीं से प्लंजिंग है, ऊपर किया हुआ है, नीचे किया हुआ है, और इक्वल डिस्ट्रैक्शन उसको, उसकी जो मेंटल कंडीशन है उसको मजीद डिट्रैक्ट कर देता है। इट मेक्स मी टायर टू फॉलो इट, आई विल टेक अ नैप आई गेस। आई डोंट नो व्हाई आई शुड राइट दिस, आई डोंट वांट टू, आई डोंट फील एबल, and I know John would think it absurd, but I must say what I feel and think in some way. It is such a relief. उसके लिए तो एक इस तरह से जर्नल लिखना ridiculous है, absurd है, लेकिन मैं लिखूंगी क्योंकि मेरे लिए ये एक रिलीफ, मुझे ये रिलीफ देता है। But the effort is getting to be greater than relief. लेकिन इस हालत में बैठ के लिखना रिलीफ से ज्यादा एफर्ट जो होता है वो लगानी पड़ती है। Half the time now I'm awfully lazy and lie down ever so much. John, I mustn't lose my strength and has me take cod liver oil and lots of tonics and things, to say nothing of ale and wine and rare meat. और जॉन की बात करके वो इसलिए डैश लगाती है कि जॉन जो है वो क्या करता है, वो मुझे कहता है कि मैं फजूल चीजों में अपनी स्ट्रेंथ और एनर्जी को वेस्ट ना करूं, और वो मुझे कोड लिवर ऑयल, कोड लिवर कहते हैं ये मछली के जिगर का तेल होता है, कोड लिवर ऑयल, कैप्सूल भी मिलते हैं इसके, और ये टॉनिक के तौर पे यूज होता है। टॉनिक मीन सिरप्स। वो कहता है कि वो सिर्फ टॉनिक्स और सिरप लेगी और ऑयल लेगी, और जो है एल है, एल भी वाइन को कहते हैं, रेड वाइन को, एल और वाइन, और रेयर मीट जो है, यानी कि रेयर मीट होता है जो कि अभी मुकम्मल तौर पे पक्का हुआ नहीं होता, वो लाइट उसको ब्राउन किया जाता है लेकिन वो अंदर से भी रेड होता है। Dear John, he loves me very dearly and hates to have me sick. I tried to have a real, earnest, reasonable talk with him the other day and tell him how I wished he would let me go and make a visit to cousin Henry and Julia. But he said I wasn't able to go, nor able to stand it after I got there, and I did not make out a very good case for myself, for I was crying before I had finished. मैंने उसे कहा भी कि वो यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, और उसे इस वक्त जो है वो बेहतर फील करेगी अगर वो यहाँ से बाहर जाएगी, और लेकिन मैं इस वक्त उसके सामने ज्यादा देर तक अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाती, क्योंकि मैं बात पूरी करने से पहले ही रोने लगती हूँ, तो मेरी कोई भी बात जो है वो उतनी असर नहीं करती। It is getting to be great effort for me to think straight. Just this nervous weakness, I suppose. जब आप किसी मेंटल या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के विक्टिम बन जाते हैं तो आप वैसे भी किसी चीज की पॉजिटिव साइड को नहीं देखते, आप हमेशा उसकी नेगेटिविटी में जाते हैं, और नेगेटिविटी आपको इतनी अट्रैक्टिव लग रही होती है कि वो आपको ग्रैब करती है, वो आपकी इमोशंस को, आपकी फीलिंग को, और आपकी मेंटल जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको उस वक्त नेगेटिव चीज में नजर आती है। You always think that each thing has one side it doesn't have two-sided. तो जब आप वन साइडेड किसी चीज को सोचेंगे तो आपको वही उसी तरह ही नजर आने लगेगी। तो कहती है कि आजकल मेरे लिए स्ट्रेट सोचना, मीन पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल है, और ये मेरी नर्वस वीकनेस की वजह से है। अच्छा, नेक्स्ट मुझे मोबाइल से पढ़ना पड़ेगा, मेरे पास पेजेस नहीं है, एक सेकंड।
इसके बाद है पेज नंबर 17। अगर मैंने वो पेज कहाँ रख दिया? अच्छा, किसी के पास है अभी वो पेज तो मुझे सेंड कर दें, पेज नंबर 17 से। सेवनटीन में जहां से भी आपने पढ़ना है। नेक्स्ट पेज। क्लास जाग रहे हैं सब? जिसके पास बुक है ना वो सेंड कर दे मुझे। जी मैम, खान को सेंड किए, वो आपको सेंड करने लगे। गॉट इट। अच्छा, इस सबके पेजेस का की अरेंजमेंट चेंज है। यहाँ पे 22 पेज है। ओके। एंड डियर जॉन, इससे नेक्स्ट वाला पेज भी आपको सेंड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास 2-3 पेजेस नहीं है, लेकिन खैर मैं ये पढ़ लूँ फिर सेंड कर दीजिएगा। And dear John gathered me up in his arms and just carried me upstairs and laid me on the bed and sat by me and read to me till he tired my head. हेड आना चाहिए यहाँ पे, he tired my head, जब तक मेरा मैं जो है मेंटली सेटिस्फाई नहीं हो गई तब तक वो उसे सेटिस्फाई करता रहा, उसे बताता रहा, उसके पास बैठकर उसे जो है वो डिस्कस करता रहा। He said I was his darling and his comfort and all he had, and that I must take care of myself of his sake and keep well. He says no one but myself can help me out of it, that I must use my will and self-control and not let my silly fancies run away with me. वो मुझे कहता है कि मुझे मेरे अलावा कोई भी ठीक नहीं कर सकता जब तक मैं खुद जो है वो ठीक होने के लिए विलिंग ना हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं किसी भी किस्म के सिली ख्यालात को अगर जहन में ना आने दूं और सेल्फ कंट्रोल रखूं तो मैं जल्दी ठीक हो सकती हूँ। There is one comfort, the baby is well and happy and does not have to occupy this nursery with the horrid wallpaper. एक चीज जो बहुत कंफर्टिंग है वो ये है कि बेबी जो है वो उसे तंग करने वाला नहीं है। दूसरी बात, बेबी के कमरे में वो हॉरिड वॉलपेपर नहीं है। If we had not used it, that blessed child would have. What a fortunate escape. Why I wouldn't have a child of mine, an irrepressible little thing, live in such a room for balls. कहती है कभी कभी आपके पास बेबी की सूरत में एक ऐसा एस्केप आता है, और जो फॉर्चुनेट एस्केप है, खुशकिस्मती के साथ, कि अगर आप बाकी चीजों को कुछ देर के लिए रिजेक्ट करके इन छोटे से बच्चे की दुनिया में गायब होना चाहते हैं। I never thought of it before, but it is lucky that John kept me here after all. I can stand it so much easier than a baby, you see. अब कहती है कि बहुत ज्यादा उसको उससे बात करने के बाद उसने उसे बेबी के कमरे में जाने की परमिशन दे दी, जिसकी वजह से अब अपने आप को पहले की निस्बत easy फील करती है। Of course, I never mention it to them anymore. I am too wise, but I keep watch of it all the same. There are things in that paper that nobody knows but me or ever will. कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस वॉलपेपर के बारे में सिर्फ मैं जानती हूँ, कोई और नहीं जान सकेगा। वाकई ऐसा है कि उस वॉलपेपर के बारे में कुछ चीजें सिर्फ वही जानती है, या वो सारी बातें जो भी वो जानती है वो सारी गलत हैं, बाकी उसकी निस्बत बेहतर जानते हैं। मेरे ख्याल से पढ़ने चाहिए, आप लोगों ने जवाब नहीं देना। मैम उस कमरे में रहती है ना अकेली इस वॉलपेपर के साथ, तो इसलिए उसको लगता है कि शायद मैं ही जानती हूँ उसको। ठीक है। It is always the same shape, only very numerous. And it is like a woman stooping down and creeping about behind the patron. I don't like it a bit. अब उसे लगता है कि एक औरत है जो उस पैटर्न के पीछे है, वो क्रीप कर रही है, रेंग रही है, जो वहां से उसे बार्स नजर आ रही है। बार्स का मतलब है जो कि जहां से वॉलपेपर खींचा हुआ है, स्ट्रिप ऑफ किया हुआ है, वहां से उसे ऐसे लग रहा है कि कोई औरत है जो उसे वहां बुला रही है।
I wonder, I begin to think I wish John would take me away from here. It is so hard to talk with John about my case because he is so wise and because he loves me so. But I tried it last night. It was moonlight. The moon shines in all around just as the sun does. I hate to see it sometimes. It creeps so slowly and always comes in by one window to or another. उसे अब सन मून भी जो है वो क्रीपी लगता है, उसे भी लाइक नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि एक विंडो से दूसरी विंडो तक ये भी क्रीप कर रहा होता है, रेंग रहा होता है. John was asleep and I hated to waken him, so I kept still and watched the moonlight on that undulating wallpaper till I felt creepy. अब उसको रात को उसको गौर से देखने का मौका मिला उस वॉलपेपर को, और क्योंकि जॉन सो रहा था तो उसने उसको करीब से जाके देखा. नेक्स्ट पेज खान. Page number 22 and 3. The faint figure behind seemed to shake the pattern just as if she wanted to get out. जो पैटर्न है उसका वॉलपेपर का, वो इस तरह कभी कभी शेक करता है जैसे वो औरत जो है उसके पीछे वो बाहर निकल कर आना चाहती है. I got up softly and went to feel and see if the paper did move, and when I came back, John was awake. मैंने उसके पास जाकर देखने की कोशिश की कि क्या वाकई वॉलपेपर शेक कर रहा है, लेकिन तब तक जॉन उठ चुका था. What is it, little girl? He said. Don't go walking about like that. You will get cold. I thought it was a good time to talk, so I told him that I really was not gaining here and that I wished he would take me away. उसने उसे वक्त को और मौके को की मुनासबत से कह दिया कि उसे वापस ले जाए. वो यहाँ बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही. Why, darling, said he, our lease will be up in 3 weeks and I can't see how to leave before. अभी तो उन्होंने अभी 3 वीक के लिए ये घर लिया है जो किराए पे, भी तो उसका किराया भी पूरा होने में भी 1 हफ्ता रहता है और 3 हफ्ते थे तो अभी उससे पहले नहीं जा सकते. The repairs are not done at home क्योंकि घर में उसके रेनोवेशन हो रही है. And I cannot possibly leave town by just now. Of course, if you were in any danger, I could not would. But you really are better, dear, whether you can see it or not. कहता है कि देखो घर में भी एक तो रेनोवेशन हो रही है, दूसरी बात तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है. अगर मुझे होता कि तुम्हें यहाँ पे कोई खतरा है तो फिर मैं तुम्हें चाहे घर में रेनोवेशन भी है तो भी वापस ले जाता, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है और मुझे इस चीज का पता है. I am a doctor, dear, and I know you are gaining flesh and color. Your appetite is better. I feel really much easier about you. I don't weigh a bit more, said I, nor as much, and my appetite may be better in the evening when you are here, but it is worse in the morning when you are away. तो कहती है कि तुम्हें अगर लग रहा है कि मैं ठीक हूं तो मैं उस वक्त होती हूँ जब तुम घर होते हो, और जब वो घर से चला जाता है तो उसकी एपिटाइट भी खराब हो जाती है. And you won't go away? I asked gloomily. नहीं, bless her little heart, said he with a big hug. She shall be as sick as she pleases, but not let's improve the shining hours by going to sleep and talk about it in the morning. वो से मुस्कुरा के कहता है कि ये कैसी बीमारी है जो कि जब दिल करता है वो हो जाती है, जब दिल करता है वो बीमारी जो है वो खत्म हो जाती है. और कहता है ऐसा नहीं होता कि मॉर्निंग में जो बंदा बीमार हो इवनिंग में उसकी डाइट ठीक हो जाए और आफ्टरनून में उसकी डाइट खराब हो जाए, क्योंकि डाइट आपसे पूछकर तो खराब नहीं होती ना, ठीक नहीं होती. तो अब उसे मजीद यकीन हो गया है कि सब इसकी अपनी इमेजिनेशन और फैंसीज हैं, कि इसे अपनी डाइट के बारे में जो
इस कदर कॉन्शियस है, वो इसी वजह से है कि ये वहम का शिकार है। कहता है कि वो इससे बेहतर है कि अभी रात का जो वक्त है इसको जाया ना करो और सो जाओ। And you won't go away? I asked gloomily. Why? How can I, dear? It is only 3 weeks more, and then we will take a nice little trip of a few days while Jenny is getting the house ready. Really, dear, you are better. Better in body, perhaps. I began and stopped short, for he sat up straight and looked at me with such a stern, reproachful look that I could not say another word. मैंने उसे कहा, मैं तुम्हें सिर्फ देखने में ठीक लगती हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करती, उसने इस कदर गुस्से से और गिला करने वाली नजर से मेरी तरफ देखा कि मैं मजीद कुछ लफ्ज कह ही नहीं सकी। My darling, said he, I beg of you, for my sake, and for our child's sake, and as well as for your own, that you will never for one instant let that idea enter your mind. There is nothing so dangerous, so fascinating to a temperament like yours. It is a false and foolish fancy. Can you not trust me as a physician when I tell you so? मैं डॉक्टर होकर अगर ये बात बता रहा हूँ तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए। So, of course, I said no more on that score, and we went to sleep before long. We went to sleep before long. He thought I was asleep first, but I wasn't. I lay there for hours trying to decide whether the front pattern and the back pattern really did move together or separately. लेकिन उसके ज़हन में एक ही चीज़ है, और वो ये कि फ्रंट और बैक पैटर्न जो लगा हुआ है वो मूव करते हैं या नहीं करते, और क्या वो सेंटर से सेपरेट हैं, तो उसकी क्या वजह है। The faint figure behind seemed to shake the pattern just as if she want नहीं, यही है। Next page. नहीं, ये वाला पेज है। On a pattern like this, by daylight, there is a lack of sequence, a defiance of law that is a constant irritant to a normal mind. हकीकत में अगर देखा जाए तो वो जो वॉलपेपर है उसका ना तो कोई सीक्वेंस बनता है, ना ही डेफिनेंस ऑफ लॉ है, यानी कि ना तो उसका कोई मतलब लॉजिकल कनेक्शन है आपस में, और वैसे भी वो इरिटेंट है एक नॉर्मल माइंड के लिए उसको देखने के लिए। द कलर इज हिडियस इनफ एंड अनरिलायबल enough and infuriating enough, but the pattern is torturing. कलर तो अनरिलायबल और infuriating है ही, लेकिन जो उसका पैटर्न है वो तो टॉर्चर करने वाला है। You think you have mastered it, but just as you get well underway in following, it turns a back somersault and there you are. एक लम्हे के लिए आपको लगता है कि आप पैटर्न को देखने के आदी हो गए हैं, लेकिन उसी वक्त ऐसे लगता है कि पैटर्न ने सोमरसॉल्ट किया और जो है मुकम्मल तौर पे पैटर्न चेंज हो गया। सोमरसॉल्ट क्या होता है? मैम वो ये छलांग होती है जब हम स्विमिंग पूल में डाइव करने लगते हैं। हाँ, कलाबाजी को कहते हैं ना, उल्टी कलाबाजी लगाना। It slaps you in the face, knocks you down and tramples upon you. Tramples होता है रौंद देना। It is like a bad dream. और आपको लगने लगता है कि आपने जो पहले वॉलपेपर देखा था वो तो एक नाइटमेयर था, इसकी तो शक्ल ही मुकम्मल तौर पे बदल गई है। अब उसे पैटर्न अपना जो विजिबिलिटी है वो भी चेंज करता हुआ लगता है। The outside pattern is a florid Arabic reminding one of a fungus. और उसके ऊपर जो फ्लोरिड अरेबिक होता है डिजाइन बना हुआ है, जो फ्लोरिड फूल बने हुए हैं उसके ऊपर, वो ऐसे लगता है उसको उनको भी फंगस लगी हुई है। If you can imagine a toadstool in joints and an interminable string of toadstools budding and sprouts in endless convolutions, why that is something like that. अब ये ना वो बता रही है कि उसका जो हालात है ना इस वक्त वॉलपेपर के, उसके ऊपर जो फूल बने हुए हैं वो फूल उसको अपनी तरफ ग्रैब तो करते हैं, लेकिन वो ग्रैब किए फूल दोबारा से खराब हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि उसको टोस्ट टूल लगता है। टोस्ट टूल पता है क्या होता है? टोस्ट टूल कहते हैं ये जो अक्सर कहते हैं ना, ये सांप की छतरी है, अक्सर जगहों पे उगा हुआ होता है ये। कहते हैं यहाँ पे सांप गुजर के गया होगा तो उसने छतरी बनाई है। मशरूम भी पता? मैम उसी तरह के मशरूम टाइप होता वैसे है वो मैम। हाँ मशरूम टाइप होता है, लेकिन वो मशरूम नहीं होता, ये ईटेबल नहीं होता ना, यस मैम। ये ईटेबल नहीं होता, ये पॉइजनस होता है। मशरूम तो ईटेबल है, एडिबल चीज है। और जो कॉन्वुलेशन है ये कहते हैं अपनी तरफ कायल करना ना, घूम कर आना। तो कभी कभी तो वो पैटर्न इस तरह लगता है कि वो जो फूल बने हुए हैं और बर्ड बनी हुई है उसके ऊपर, वो टोडस्टूल की तरह है, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पे उनकी शक्ल जिस तरह से चेंज हो जाती है, वो यूं लगता है कि वो कॉन्वुलेशन हो गई है, इस तरह का कोई कलर है ऐसे, और कहीं से फूल खिला हुआ है, स्प्राउट किया हुआ है, कहीं से बर्ड है, तो वो जो कॉन्वुलेशंस हैं वो उसे अपनी तरफ ग्रैब करती हैं। That is sometimes. There is one marked peculiarity about this paper, a thing nobody seems to notice but myself, and that is that it changes as the light changes. अब जैसे जैसे कहती है उसके ऊपर रोशनी पड़ती है, ये भी चेंज होना शुरू हो जाता है, और इस चीज को सिर्फ मैं समझती हूँ और कोई नहीं समझता। When the sun shoots in through the east window, I always watch for that first long straight ray. It changes so quickly that I never can quite believe it. पहले जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो मैं उसे तब से देखना शुरू करती हूँ कि क्या ये वही कलर है, ये चेंज हो जाएगा, लेकिन वो बहुत तेजी से चेंज हो जाता है। That is why I watch it always. By moonlight, the moon shines in all night. When there is a moon, I wouldn't know it was the same paper. When moon shine करता है और जब उसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है, मून चला जाता है, तो कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये पहले वाला पेपर था या बाद वाला है। At night, in any kind of light, in twilight, candlelight, lamplight, and worst of all, by moonlight, it becomes bars. किसी भी किस्म की रोशनी जब इसके ऊपर पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे जेल की सलाखें हैं। अब यहाँ पे जो बार्स का जिक्र है ना, सलाखों का, इनफैक्ट ये इसके अपनी मेंटल कंडीशन को भी सिंबलाइज करता है कि ये अपनी ही ब्रेन की प्रिजनर बन चुके, जिस तरह एक प्रिजनर जेल में होता है और बाहर से सलाखों से झांक रहा होता है, इसका अपना दिमाग इसको इस वक्त एक प्रिजनर बना के रखे हुए और उन बार से बाहर निकलना चाह रही है। और जो लेडी जिसको वो वॉलपेपर के पीछे देख रही है, वो लेडी भी इसका अपना ही कैरेक्टर है जो एस्केप चाह रही है। The outside pattern I mean and the woman behind it is as plain as can be. फिर बहुत साफ नजर आने लगता है वो पैटर्न भी और उसके पीछे जो वुमन है। I didn't realize for a long time what the thing was that showed behind that dim sub pattern, but now I am quite sure it is a woman. पहले मुझे तो समझ ही नहीं आती थी और अब मुझे पता चलने लगा है कि वहां पीछे एक औरत है। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम किसी पेंट को उखड़ा हुआ देखते हैं तो हम अगर मुसलसल पेंट की तरफ देखते रहें तो आप उसमें से कोई ना कोई शक्ल बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये वही बात हो रही है कि अब उसमें से उसे मुसलसल एक औरत जो है उसका फेस नजर आता है। मुकीम इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो क्लास? मुकीम आवाज आ रही है मेरी? जल्दी बताओ वरना मैं रिमूव कर दूंगी क्लास में से। मैम मुझसे पूछ रहे हैं? मुकीम कौन है? मैं ही हूँ। हाँ तो फिर आप लेट क्यों आए हो? मैं पहले आया था, आपने एंटर ही नहीं था किया, मैं फिर चला गया था काम में। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब लिंक उसी वक्त शेयर किया और चलाया था। अच्छा आपने बहुत पहले किया था ना, फिर उसके बाद किस काम से तुम चले गए थे?
सब्जी लानी थी। इतने काम तो मैरिड लोगों को नहीं होते जितने काम तुम लोगों को पड़ते हैं। सॉरी मैम। हम में से मैम अक्सर लोग हैं। अक्सर लोग मैरिड हैं। तुम कौन सा धमाका करने लगे हो? जी। नहीं, अक्सर की एंगेजमेंट हो गई है ना, उनको ज्यादा मुसीबत होती है। आप लोग हाँ, फिर आप तो लोग आपको नहीं बोल मैरिड रही, होना आप चाहिए। लोग का एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैम घर में छोटे भाइयों से ज्यादा काम करवाते हैं। By daylight she is subdued quiet. अब जो वो वुमेन फिगर है, दिन के वक्त तो वो सबड्यूड रहती है, खामोश रहती है। I fancy it is a pattern that keeps her still so. शायद वो पैटर्न की वजह से खामोश रहती है। It is so puzzling. It keeps me quiet by the hour. I lie down ever so much now. John says it is good for me and to sleep all I can. Indeed, he started the habit by making me lie down for an hour after each meal. अब तो उसने आदत बना ली है कि हर वक्त के खाने के बाद वो 1 घंटा तक रेस्ट जरूर करेगी। It is a very bad habit, I'm convinced. For you see, I don't sleep. क्योंकि ऐसा हर 1 घंटे के लिए नींद तो नहीं आनी होती। और दूसरी बात आप वो कह रही है कि ये ज्यादा बुरी हैबिट है क्योंकि उस वक्त आप सो भी नहीं रहे होते लेकिन घर वालों को ये लग रहा होता है कि आप सो रहे हैं और ये ज्यादा क्या कहना चाहिए, डिस्टर्बिंग है ये चीज। नेक्स्ट पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इन द डे टाइम इट इज टायरसम एंड परप्लेक्सिंग। नो मैम। Okay. And that cultivates deceit. नहीं हाँ यही है। And that cultivates deceit and I don't tell them that I'm awake. Oh no. अब ये कहती है ये बात ज्यादा आप दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं ये कह के कि वो फलां बंदा जो है वो सो रहा है, हालांकि वो सो नहीं रहा होता, तो ये ज्यादा धोखा देने वाली बात है। The fact is I'm getting a little afraid of John. He seems very queer sometimes and even Jenny has an inexplicable look. कभी कभी तो जो है जेनी भी बहुत अजीबोगरीब होती जा रही है और जॉन से मुझे डर लगने लगा। इनएक्सप्लिकेबल होता है ना बयान करने वाली जो होती है नजर। I have watched John when he did not know I was looking and come into the room suddenly on the most innocent excuses and I have caught him several times looking at the paper. कहती है सिर्फ मेरी कंडीशन नहीं है, मैंने जॉन को भी बहुत दफा वॉलपेपर की तरफ इसी तरह घूरते हुए देखा है। जेनी टू और जेनी को भी। I caught Jenny with her hand and on it it once. मैंने एक दफा जेनी को इस तरह से घूरते हुए उसके शोल्डर पे हाथ रखा। She didn't know I was in the room. उसे पता नहीं था। And when I asked her in a very quiet voice, with the most restrained manner possible, what was she doing with the paper, she turned around as if she had been caught stealing and looked quite angry. Asked me why I shouldn't frighten her so. एक दफा मैंने उसे खड़े हुए इस वॉलपेपर की तरफ घूरते हुए देखा तो मैं बहुत करीब से जाकर मैंने एक विस्पर की, उसे बुलाया तो वो एकदम झटके से पीछे मुड़ी जैसे उसे कोई चीज चुराते हुए किसी ने पकड़ लिया हो, और वो बोली कि उसने मुझे इस तरह से डरा क्यों दिया है। उसका ख्याल यह है कि ये वॉलपेपर सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए सरप्राइजिंग और वॉन्डरिंग नहीं है, उसने जैनी को भी और जॉन दोनों को ही उस वॉलपेपर को घूरते हुए देखा हुआ है। Everybody has problem with that wallpaper, according to the narrator. Then she said that the paper stained everything it touched and that she had found yellow smooches on all my clothes and John's and she wished we would be more careful. फिर उसने मुझे बताया कि उसने ये जो वॉलपेपर जैसे येलो निशान है ये उसने मेरे और जॉन के कपड़ों पर भी लगे हुए देखे हैं और उसने ये भी कहा
कि अब हमें मजीद केयरफुल हो जाना चाहिए। Did not that sound innocent? But I know she was studying that pattern, and I am determined that nobody shall find it out but myself. Life is very much more exciting now than it used to be. You see, I have something more to expect, to look forward to watch. I really do eat better and am more quiet than I was. अब वो क्योंकि जर्नल है ना ये लिखा हुआ, और ये हर रोज लिखा जाता है। अब इसने अगले दिन की बात लिखी है। क्या अब मैं अगले दिन की बात मतलब कि 2-3 दिन बाद अगर वो बेहतर फील कर रही है तो उसने लिखा कि अब मैं खुद को बेहतर फील करती हूँ, अब मैं लाइफ को होपफुली और पॉजिटिवली देखने लगी हूँ। John is so pleased to see me improve. He laughed a little the other day and said I seem to be flourishing in spite of my wallpaper. I turned it off with a laugh. मैंने उसकी बात को हंस के टाल दिया। उसने कहा शुक्र है वॉलपेपर के बावजूद तुम पहले की निस्बत बेहतर हो। I had no intention of telling him that it was because of the wallpaper. उसे नहीं पता कि मैं खुद को वॉलपेपर की वजह से ही जो है वो इतना नॉर्मल शो करने की कोशिश कर रही हूँ। He would make fun of me. He might even want to take me away. I don't want to leave now until I have found it out. There is a week more, and I think that will be enough. एक हफ्ता और रह गया उन्हें इस घर में रहने के लिए। I'm feeling ever so much better. I don't sleep much at night, for it is so interesting to watch developments, but I sleep a good deal in the daytime. In the daytime, it is tiresome and perplexing. There are always new shoots on the fungus and new shades of yellow all over it. I cannot keep count of them, though I have tried conscientiously. मैंने कहती है बहुत गौर से देखने की कोशिश भी की कि वहाँ इसके पीछे जो फंगस लगी हुई है, इनके पीछे जो शेड्स हैं वो कितने हैं, लेकिन मैं काउंट नहीं कर पाई। It is the strangest yellow, that wallpaper. It makes me think of all the yellow things I ever saw. Not beautiful ones like buttercups, but old foul, but bad yellow things. कहती है ये वॉलपेपर ने मुझे हर येलो चीज से नफरत दिला दी है, लेकिन बटरकप से नहीं। बटरकप्स होते हैं फ्लावर हैं। मुझे क्यों लगता है कि मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। कहती है बटर कप्स का जो कलर होता है, ये फ्लावर्स होते हैं और बहुत खूबसूरत फ्लावर हर कलर में होते हैं। मोस्टली बटर कप फ्लावर जो है ये येलो कलर में होती है। कहती है वो वाला कलर नहीं, ये है फाउल गंदा सा येलो कलर है, जिसकी वजह से मुझे बाकी सब येलो कलर से नफरत हो रही है। बट देयर इज समथिंग एल्स अबाउट दैट पेपर, द स्मेल। I noticed it at the moment we came into the room, but with so much air, and it was not bad. Now we have had a week of fog and rain, and whether the windows are open or not, the smell is here. उसे हर जगह स्मेल, वो स्पेसिफिक सी स्मेल नजर आती है और उसे ऐसे लगता है कि वो उसके इर्द गिर्द मंडला रही। It creeps all over the house. I find it hovering in the dining room, skulking in the parlor, hiding in the hall, laying in wait for me on the stairs. It gets into my hair. Even when I go to write, if I turn my head suddenly and surprise it, there is that smell. कहीं राइट पे भी चली जाऊं तो पीछे मुड़ के देखूं तो भी वो स्मेल होती है। Such a peculiar odor too. I have spent hours in trying to analyze it, so find what it smelled like. It is not bad at first and very gentle, but quite the subtlest, most enduring odor I ever met. In this damp weather, it is awful. I wake up in the night and find it hanging over me. आपने वैसे भी देखा होगा ऐसी जगह जहाँ पे अक्सर रोशनी नहीं आती, अंधेरा होता है, वो जगह पे अक्सर एक खास सी स्मेल होती है, क्योंकि उसमें जो सॉइल की स्मेल होती है वो भी मैच हो जाती है उसके साथ जो ट्रीज होते हैं या जो घास लगी हुई होती है, फिर इंसेक्ट्स की एक स्पेसिफिक सी स्मेल होती है।
तो वो डैम्प चीज, डैम्प जगह, सब स्मेल्स मिलकर एक अजीब सी ओडोर देती हैं. It is not bad at first and very gentle. Sorry. It used to disturb me at first. I thought seriously of burning the house to reach the smell. पहले तो वो इसे इतना डिस्टर्ब करती थी स्मेल कि उसका जी चाहता था वो घर को जला दे. But now I'm used to it. The only thing I can think of that it is like the color of the paper, the yellow smell. There is a very funny mark on this wall, low down, near the mopboard, a streak that runs around the room. It goes behind every piece of furniture, except the bed, a long, straight, even, smooth, as if it had been rubbed over and over. एक स्मॉल सी जो से स्ट्रीक नजर आती है, लकीर नजर आती है, स्ट्रीक कहते हैं लकीर को, और वो कहती है बहुत वो अजीब सा निशान लगा हुआ है और हर चीज के पीछे है. कोई फर्नीचर है उसके पीछे भी वही निशान है, बेड के अलावा हर जगह पे उसके पीछे एक निशान लगा हुआ है, एक लकीर लगी हुई है. आई वॉन्डर हाउ इट वॉज डन एंड हु डिड इट एंड दैट दे डिड इट फॉर एंड व्हाट दे डिड इट फॉर. मुझे नहीं पता ये लकीर किसने क्यों लगाई और किस लिए लगाई है हर चीज के पीछे. राउंड एंड राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड एंड राउंड. इट मेक्स मी डिजी. आई रियली हैव डिस्कवर्ड समथिंग एट लास्ट. आखिरकार मुझे इसका जवाब मिला. Through watching so much at night when it changes, so I have finally found it. क्योंकि मैंने उसे मुसलसल घूरना होता है, सारी रात उसको देखती रहती हूँ, तो अब मुझे वो फाइनली मिल गया. The front pattern does move, and no wonder. The woman behind shakes it. अब मुझे पता चला कि जो उसके पीछे पैटर्न है वो मूव करता है और वो औरत उसको शेक करती है. Sometimes I think there are a great many women behind and sometimes only one. And she crawls around fast and her crawling shakes it all over. कभी कभी मुझे लगता है एक से ज्यादा औरतें हैं, सब उसको मिलकर शेक कर रही हैं और इसलिए वो औरत क्रॉल करते हुए जब सामने आती है फ्रंट पे तो फिर वो वॉलपेपर मूव करता है. Then in the very bright spots she keeps still. जहां जहां से फटा हुआ है वो वॉलपेपर, जो ब्राइट जगह है वहां पे वो स्टिल रहती है, फिक्स रहती है. एंड इन द वेरी शेडी स्पॉट, जहां पे शेड है, अक्स पड़ता है उस वॉलपेपर का, शी जस्ट टेक्स होल्ड ऑफ द बार्स एंड शेक्स देम हार्ड. ऐसे लगता है कि जैसे वहां वो औरत उन बार्स को जोर से पकड़कर सलाखों को हिला रही हो. एंड शी इज ऑल टाइम ट्राइंग टू क्लाइंब थ्रू, बट nobody could climb through that pattern. It strangles so. I think that is why it has so many heads. They get through, and then the patron strangles them off and turns them upside down and makes their eyes white. और कभी ऐसे लगता है कि वो पैटर्न ने जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसको पकड़ के उसका गला किसी ने दबा दिया हो, वो इस और वो आईज उसकी वाइट हो गई हो. If those heads were covered or taken off, it would not be half so bad. अगर वो ऊपर से भी इतना फटा हुआ ना होता वो वॉलपेपर तो शायद फिर भी इतना बुरा ना लगता. I think that woman gets out in the daytime. And I'll tell you why. Privately, I have seen her. I can see her out of every one of my windows. अब तो उसे उन विंडोज से बाहर भी नजर आती है, हर विंडो में खड़ी नजर आती है. बस काफी है. Any question? मैम ये जो हमने पहले पढ़ा कि वो कहती है 1 वीक रह गया मैं उसको ढूंढ के रहूंगी, वो क्या चीज ढूंढनी है उसने? कि ये जो एक स्पेसिफिक सी स्मेल है या जो उस घर के हर फर्नीचर के इधर उधर लकीर लगी हुई है, ये किसने लगाई है. अब उसने क्या ढूंढा है कि ये लकीर जो लगाने वाली है ये जो है ये वोमेन है, इसी ने लगाई है क्योंकि ये वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है. ओके मैम.
हाफिज।